Good morning, students. So we have started chemical effects of electric current. So let's have recapitulation. As I told you, what is current? Flow of electric charge. That means flow of electrons. What is current? Current means flowing. If water flows, it is water current. If air is flowing, it is air current. So if electric charge is flowing, it is known as electric current. We have discussed that electric current. So which substance conduct electricity? So we know that metals usually conduct electricity, like iron, copper wire, aluminum wire, mercury. They all conduct electricity. They are known as good conductors. And which substance do not conduct electricity? Like glass, rubber, wood, plastic. These are bad conductor of electricity. They are known as insulator because they are bad conductor of electricity. Okay. But then we will talk about tester. What is tester? As I told you, whenever you have electrician at your home, so if you want to check whether the current is flowing from this wire or not, so we have a tester, a device look like a screwdriver, but at the base it have a plastic handle in which there is there will be a bulb which will be glowing. So if we just check some wire, so if current is flowing, it will detect and it will show by a sign of light. There will be a bulb. Okay, so tester are having tester is the instrument which detect the amount, which detect the current is flowing or not. Then we will discuss about do liquids conduct electricity? क्या liquids electricity को conduct करते हैं? Okay, so not all liquids conduct electricity. तो पहले तो हमें ये समझना है कि जो metals होते हैं like एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, मर्क्यूरी या आयरन रॉड, स्टील, ये सब में मेटल है. तो ये सब के अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या होता है? मेटल्स हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो इस सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, so it is because with the help of free electrons. Okay, and when the current is flowing in liquid, it is flowing with the help of free ions. Ions क्या होते हैं? तो Na+, Cl-, तो एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए या एटम में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो बन जाता है आयंस, जिसमें चार्ज आता है प्लस माइनस. फॉर एग्जांपल जो दिस वे Na+ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन. तो इसको हम क्या कहेंगे? आयंस कहेंगे. तो अगर लिक्विड में ऐसे कुछ आयंस होंगे तो वो लिक्विड में करंट पास होगा, वो लिक्विड करंट को पास होने देगा. तो इस पास होने देने को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन. अगर लिक्विड करंट को पास कर रहा है तो लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर. अगर लिक्विड करंट को पास नहीं कर रहा तो उसको कहेंगे बैड कंडक्टर. तो लिक्विड में ऐसा क्या होता है जिससे करंट पास होगा? अगर लिक्विड में आयंस होंगे. आयंस कैसे आते हैं? तो सॉल्ट से, सॉल्ट डिसॉल्व कर दोगे, मिनरल डिसॉल्व कर दोगे तो वो बन जाएंगे आयंस आफ्टर डिसॉल्यूशन, है ना. तो जैसे नमक होता है, नमक क्या होता है? NaCl, Na+Cl, Na+Cl-. बट वो जब पानी में डिसॉल्व होता है तो वो फ्री हो जाता है, Na+ हो जाएगा, Cl- अलग अलग हो जाएगा. So we will get positive ions, negative ions. Positive ions को cations बोलते हैं और negative ions को anions बोलते हैं. Cations and anions. Okay. अब आपको जो लर्न करना है कि आयंस होंगे, सॉल्ट्स होंगे, मिनरल्स होंगे पानी में, तो वो पानी कंडक्ट करेगा. फ्लो पानी के अंदर एसिड हो, कुछ भी हो, बट अगर आयंस होंगे तो पानी कंडक्ट करेगा. ज्यादा आयंस होंगे तो ज्यादा करंट पास करेगा, कम आयंस होंगे तो कम करंट पास करेगा. ओके, अगर आयंस ही नहीं होंगे तो कंडक्शन नहीं होगा. लेट अस अंडरस्टैंड, कैन लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो क्वेश्चन अगर हो डज लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर क्या आएगा? नॉट ऑल लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नॉट ऑल लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सब लिक्विड्स कंडक्ट नहीं करेंगे. However, some of them can be regarded as good conductor. कुछ liquids ऐसे हो गए जो good conductor है, while others are poor conductor. कुछ liquids bad conductor होते हैं. Water containing salts and minerals
dissolve in is always conduct electricity. अगर पानी में सॉल्ट होगा, मिनरल्स होगा और वो डिसॉल्व हो गए तो वो कंडक्शन करेगा, वो करंट को पास करेगा। तो वैसा पानी बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। इसलिए हमें हमेशा बोला जाता है ना, डोंट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंस और स्विच बोर्ड विथ वेट हैंड्स, है ना। गीले हाथ से हमें कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, स्विच बोर्ड को कभी भी हाथ लगाना नहीं चाहिए, बिकॉज हम जो पानी यूज करते हैं उसमें सॉल्ट मिनरल्स होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसलिए हमें वैसे पानी इसलिए हमें वेट हैंड से कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को और स्विच बोर्ड को हाथ नहीं लगाना है। नाउ डिस्टिल वाटर व्हिच डज नॉट कंटेन एनी सॉल्ट्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर जो होता है वो प्योर वाटर होता है। डिस्टिल वाटर कैसे बनाया जाता है? तो नॉर्मल कोई भी वाटर अगर जो होता है उसे बॉईल करते हैं, उसकी वेपर्स को कलेक्ट करते हैं। तो अगर पानी 100 डिग्री पे जब गर्म करते हैं इसे राउंड वाटर फ्लास्क के अंदर, फिर वेपर्स को कलेक्ट किया जाता है एक ट्यूब से, फिर उसको कूल करते हैं तो वो लिक्विड बनेगा अगेन। बट इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है सॉल्ट्स की, शुगर की, वो सब नीचे रह जाती है और खाली 100 डिग्री पे H2O दैट इज वाटर इवोपरेट्स, दैट इज बॉईल होता है और उसके वेपर्स आते हैं, उसको कूल करते हैं और यहाँ पे जो पानी मिलता है उसको कहेंगे प्योर वाटर, दैट इज डिस्टिल वाटर। और इस प्रोसेस को हमको कहेंगे डिस्टिलेशन। गरम करना, वेपर बनाना, कूल करना और फिर जो कलेक्ट करना लिक्विड को उसको हम कहते हैं डिस्टिल। तो हमने क्या किया? डिस्टिल। डिस्टिल वाटर इज द प्योरेस्ट वाटर, उसमें कोई आयन सॉल्ट नहीं होते हैं। ओके, अगर नहीं होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। डिस्टिल वाटर इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो दुनिया में सबसे प्योर वाटर कौन सा है? डिस्टिल वाटर। एंड डज नॉट contain any kind of impurities in it, hence it is a poor conductor of electricity। तो वाटर तो हमने सुना है ना कि वाटर कंडक्ट करता है, और कौन सा वाटर? नॉर्मल वाटर, टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा, बट डिस्टिल वाटर पास होने नहीं देगा। अब डिस्टिल वाटर क्या होता है? बिस्लरी पानी? नो, बिस्लरी पानी तो मिनरल वाला पानी होता है। डिस्टिल वाटर आपको कहीं पे ड्रिंकिंग वाटर में नहीं मिलेगा और हमें डिस्टिल वाटर पीना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी को मिनरल की जरूरत होती है, आयंस की जरूरत होती है। तो नॉर्मली हमारे जो पानी मिल रहा है टैप वाटर में से, जो नगर पालिका से आ रहा है या बोरिंग से आ रहा है या वेल में से, कुएं में से निकल रहा है, वो सब उनके अंदर मिनरल्स होते हैं। और डिस्टिल वाटर जो है वो हमारे डाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। और डिस्टिल वाटर वैसे तो प्योर फॉर्म है, हम पी भी सकते हैं, बट बार बार कंटिन्यूस पिएंगे तो हमारी बॉडी को मिनरल्स की कमी हो जाएगी। और डिस्टिल वाटर मेडिसिन में यूज होता है, केमिकल लैब में यूज होता है। ओके, एंड सेम वे डिस्टिल वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म वाटर। सेकंड नंबर पे आएगा प्योर फॉर्म रेन वाटर। रेन वाटर में भी सेम होता है, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, बट उसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ सकती है व्हाइल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। एसिड रेन जैसे बन जाती है, गैस डिसॉल्व होती है। सो फर्स्ट इज डिस्टिल वाटर, सेकंड कैन बी रेन वाटर। ओके, सो दिस वाज व्हाट कैन लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हिच वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लाइक डिस्टिल वाटर तो हमने देख लिया, डिस्टिल वाटर कैसा है? बैड कंडक्टर है। सो कौन सा वाटर गुड कंडक्टर होता है? ओके, टैप वाटर, मिनरल वाटर, वाटर फ्रॉम ओशन, रिवर, लेक्स, वेल, ये सब क्या करेंगे? They contain what? They contain salts and minerals. जब उनमें salt और mineral dissolve है, then they are good conductor of electricity. Good conductor of electricity. Because उनमें जो normally जो भी पानी यूज करते हैं, अगर आपको एक चीज बताऊं, अगर आपके हाथ में डिस्टिल वाटर डाला जाए, डिस्टिल वाटर तो कैसा है? बैड कंडक्टर है। पर डिस्टिल वाटर के अंदर अगर हमारे हाथ वेट कर दे, फिर भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हाथ नहीं लगा सकते। बोलो क्यों? बिकॉज डिस्टिल वाटर भी जब हमारे हाथ को लगता है तो हमारे हाथ के स्किन के ऊपर होता है स्वेट ग्लैंड्स, जिसमें से स्वेट निकलता है ना। हमारे हाथ पे थोड़ा सा है ना पसीना होता है, ये थोड़ा सा स्वेट ग्लैंड निकलता है, तो उसमें होता है NaCl, तो मिनरल्स होते ही उसमें हमारे स्वेट के अंदर। तो अगर हमारे हाथ पे पानी लग जाएगा ना तो हमारे हाथ के अंदर से सॉल्ट थोड़ा सा
स्वेट का सॉल्ट निकल के उसको क्या बना देगा, गुड कंडक्टर बना देगा। मतलब हमें डिस्टिल वाटर हो या टैप वाटर हो, हमें भीगे हाथ से कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस टच नहीं करना है। ये तो कौन सी बात हो गई, डिस्टिल वाटर में अगर करंट पास करोगे और वायर जोड़ दोगे बल्ब के साथ तो वो करंट पास नहीं करेगा। हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि डिस्टिल वाटर में हाथ डुबो के चेक करना है ना इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, तो बिकॉज डिस्टिल वाटर भी अगर हमारे कांटेक्ट में आ गया तो हमारा स्वेट उसको बना देगा थोड़ा सा सॉल्ट वाला पानी बना देगा थोड़ा सा, एंड सॉल्ट आ गए तो उसमें कंडक्शन होगा। नाउ लिक्विड्स की बात करें, एक और टॉपिक है कि जब करंट पास होता है बल्ब के अंदर तो बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट। फॉर एग्जांपल देयर इज अ बल्ब, उसमें फिलामेंट होता है। तो करंट पास होने से ये हीट होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होने से फिलामेंट हीट होगा और हीट होने से वो ग्लो होगा। तो ज्यादा टेंपरेचर इंक्रीज होगा तो फिलामेंट ग्लो होगा, बल्ब जलेगा। बट लिक्विड में जब करंट पास करेंगे ना तो जैसे कॉपर वायर में अगर आपने करंट पास किया तो काफी सारा करंट पास हुआ तो बल्ब ग्लो करता है। बट अगर हम सर्किट को ज्वाइन कर दें, ओके, बल्ब को ज्वाइन कर दें एक सीरीज ऑफ बैटरी के साथ, फिर उसको हम लिक्विड डाल दें इलेक्ट्रोड के साथ, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। ओके, बट ये जब लिक्विड के अंदर डालेंगे तो बल्ब ग्लो होगा। कब होगा, जब लिक्विड में क्या होगा, मिनरल्स हो, Na+Cl- H+Cl- HOH-, तो उसके अंदर बल्ब ग्लो होगा। बट कुछ लिक्विड्स कैसे होते हैं, वीक कंडक्टर, एक होते हैं गुड कंडक्टर, एक होते हैं वीक कंडक्टर। तो कभी लिक्विड्स के अंदर आयंस कम होंगे तो करंट पास होगा, बट इतना सब नहीं होगा कि फिलामेंट ग्लो कर पाए। फिलामेंट ग्लो कर पाए ऐसा नहीं होगा, बिकॉज कुछ लिक्विड्स के अंदर आयंस कम होते हैं, एसिटिक एसिड है ना, और कुछ लिक्विड्स में आयंस ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा आयंस हो गए तो ज्यादा करंट पास होगा, कम आयंस हो गए तो कम करंट पास होगा। तो जब कम करंट पास होगा तो उसको हम इंसुलेटर तो नहीं बोलेंगे, उसे हम कहेंगे वीक कंडक्टर। जिसमें ज्यादा करंट पास होगा उसको कहेंगे गुड कंडक्टर, ओके, और जिसमें बिल्कुल पास नहीं होगा उसको कहेंगे बैड कंडक्टर। तो उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे कि हमारा जो लेमन वाटर होता है ना, लेमन वाटर, नींबू पानी, एसिड का वाटर, वो सब होता है गुड कंडक्टर। विनेगर छोड़ो, विनेगर इज आल्सो गुड कंडक्टर वी कैन से बिकॉज़ इट हैव्स आयंस, बट कंपेयर्ड टू लेमन वाटर में ज्यादा आयंस होंगे। देन वी हैव बहुत सारी चीज होती है, जैसे कि केरोसिन लो, केरोसिन इज अ बैड कंडक्टर बिकॉज़ उसमें आयंस नहीं आते हैं। देन वी हैव सो मेनी अदर लिक्विड्स, मिल्क के अंदर पानी आता है, उसमें सॉल्ट्स हो गए अगर थोड़ा सा तो भी गुड कंडक्टर बन जाएगा। ओके, देन ओके, सो देयर आर सो मेनी लिक्विड्स, अल्कोहल है तो वो बैड कंडक्टर हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन इंप्योरिटीज। अगर इम्प्योरिटीज होगी पानी की अंदर सॉल्ट वाली तो करंट पास करेगा, अगर इम्प्योरिटीज नहीं होगी तो करंट पास नहीं करेगा। सो दिस वाज अबाउट टुडेस टॉपिक एंड इफ यू इन डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, वन मोर थिंग, हमारे जो टेस्टर होता है ना, टेस्टर में लाइट ग्लो करती है, बट उसके अंदर ज्यादा करंट पास करेगा तो ग्लो करेगी। बट जो एलईडी आती है, एलईडी बल्ब, छोटे छोटे एलईडी बल्ब आते हैं है ना, रंग बिरंगी, तो एलईडी बल्ब क्या करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, वो एकदम कम करंट पास होगा तब भी ग्लो करेंगे। और फिलामेंट जो होती है बल्ब के अंदर, बल्ब जो होते हैं छोटे बल्ब भी आते हैं, तो छोटे बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होगी तो उसमें ज्यादा करंट पास होगा तो ही ग्लो करता है। और एलईडी जो बल्ब होते हैं, एलईडी बल्ब, उसमें थोड़ा सा करंट भी पास करेगा तो वो ग्लो करेगा। तो एलईडी बल्ब यूज करना ज्यादा बेहतर है। So LED bulb are used, okay, to detect the current flowing from liquid also, because liquid में कुछ liquids कैसे कम current pass करते हैं ना, so LED can detect that small amount of current also. So this was about today's topic.